السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ آف ریسورسز اینڈ پاپولیشن گروتھ۔ اگر جو ہے اس کی ڈیفینیشن اس کی ہیڈنگ اگر ہم سمجھیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف ریسورسز۔ اب ہماری جو ریسورسز ہیں، ہماری کنٹری کے جو وسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور پاپولیشن گروتھ، اس کے بارے میں جو ہے ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے ہمارے یونٹ 7 کا، ڈیموگرافی آف پاکستان۔ So let's start the video. The economic and social progress require a good balance between national resources and national population. اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو اکنومیکلی یا سوشلی پروگریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس چیز کو پروگریس میں ترقی کرنا، کسی بھی جو کنٹری ہے جو ترقی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا ریکوائر ہے؟ جو نیشنل ریسورسز ہیں، ہمارے جو وسائل نکل رہے ہیں زمینوں سے یا کسی بھی چیز سے، ٹھیک ہے، وہ اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے بیچ ایک بیلنس بنا رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان دونوں کے بیچ بیلنس ہوگا تو کیا ہوگی؟ ہماری پروگریس ہوگی۔ If the population is too scant میں کم، ٹھیک ہے، the natural resources cannot be utilized effectively۔ کہہ رہا ہے اگر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اسکینٹ ہوگی، کم ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری جو نیچرل ریسورسز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو وہ یوٹیلائز نہیں ہو پائے گی۔ But if the population is too high coupled with a high growth rate, then the pressure on national resources become very heavy, making it difficult to maintain prosperity۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا گروتھ ریٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہو، تو اس سے ہماری جو نیچرل ریسورسز ہے وہ کم ہو، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ہمارے نیچرل ریسورسز جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہو پاپولیشن کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں جو ہے وہ کافی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری جو کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروگریس پہ بھی جو ہے افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ There is dire need of trained personnel to get effectively benefit from national resources through economic and social stability and for better use of scarce means۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کافی ضرورت ہے، ڈائر نیڈ، ٹھیک ہے، ضرورت ہے کہ ہمیں جو وہ ٹرین جو وہ پرسنل ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ہماری جو ریسورسز ہے اس سے ہم جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے، ہماری جو کنٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ اکنومیکلی سوشلی اسٹیبل ہو سکے۔ اب ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل کہیں بھی جو ریسورسز کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں کم ہے، ٹھیک ہے، تو کافی لوگوں کا یہ جو ہے وہ آنسر ہوتا ہے کہ اگر کم ہے لیکن جو ہمارے پاس ریسورسز ہے، کیا اس کا جو ہے وہ صحیح استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا وہ ریسورسز جو ہے وہ یوٹیلائز اتنی کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ جو ہے وہ کی نہیں جا رہی، تو اگر زیادہ ہوں گی تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت جو ہے پرسنل نیڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹرین جو ہے وہ چیزوں کی، تاکہ ہم جو ہے اپنی نیشنل ریسورسز سے بینیفٹ فائدہ اٹھا سکیں۔ It is therefore necessary to increase the quantum of trained men and women۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہماری پاپولیشن ہے وہ ٹرین ہو۔ فار ایگزامپل اگر ایگریکلچر، اگر ہمارے پاس جو ہے وہ زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو اگر ہمارے پاس زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو زمین پر فصلیں اگا سکے، ٹھیک ہے، سبزیاں اگا سکے، فروٹ اگا سکے، جو کہ ہماری جو ہے وہ ریسورس ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری جو ہمارے پاس جو ریسورسز ہے، ٹھیک ہے، زمینوں کی، وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم اس پر جو ہے ایگریکلچر کا کام نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرین لوگ ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنے ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ Pakistan is a densely populated country. Its total resources are not increasing at rate commensurate with the rate of growth population۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری جو کنٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈینس ہے، بہت جی پاپولیٹڈ کنٹری ہے، اگر اس کے ٹوٹل ریسورسز دیکھیں تو وہ انکریز نہیں ہو رہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو گروتھ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔
This has resulted in undue pressure on the existing resources and the country is experiencing a population explosion. अब क्या कह रहा है, हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, ठीक है, और हमारी जो रिसोर्सेज है वो नहीं बढ़ रही, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज है उस पर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है और जो है हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो है वो शिकार हो रहे हैं. रेज इन अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन पर कैपिटा फैसिलिटीज, सैनिटेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन. अब इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, लोग जो है वो बेरोजगार हैं, ठीक है, हमारी जो फैसिलिटीज है सैनिटेशन की, हेल्थ की, एजुकेशन की, ठीक है, वो रिड्यूस हो रही है और जो बीमारियां हैं, ठीक है, सैनिटेशन नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, यहाँ हमारे यहाँ जो है वो बीमारियां बढ़ेंगी. बर्थ रेट, हाई बर्थ एंड डेथ रेट आर सिम्टम ऑफ एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ. अब जो है वो बर्थ भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, डेथ भी ज़्यादा हो रही है, तो ये किस चीज़ का सिम्टम है, हाई जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का. This can be resolved by striking a fine balance between the population and the resources. अब जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो है वो डेथ रेट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो फैसिलिटीज है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से जो है यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. अगर हमारे पास हेल्थ की रिसोर्सेज है, फैसिलिटीज हैं, ठीक है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो हमारे पॉपुलेशन के जो है वो पॉपुलेशन में जो है वो पूरी नहीं आ रही, सफिशिएंट नहीं है. तो इसी वजह से क्या कह रहा है कि हमें जो है वो ये सारे मसले जो है वो रिजॉल्व जो है वो कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, इन दोनों पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में जो है वो बैलेंस कायम करके. आगे क्या कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टू इंक्रीज द नेशनल रिसोर्स. अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसको कम करें और हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है इसको बढ़ा कैसे सकते हैं. ऐसी काफ़ी जो रिसोर्सेज है जो कि हम बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सर्विसेज जो हमें जो रिसोर्सेज मिलती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, प्रोडक्ट वगैरह, ये सारी तो हमारी रिसोर्सेज है ना, तो इनको हम बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ा सकते हैं कि मेन के ज़रिए. ये सारा टॉपिक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का जो यूनिट है वो आप जो है वो सुनकर पढ़ जो सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज है क्या, हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं. कितने टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, मैन मेड रिसोर्सेज क्या होती है. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें जो है अल्लाह की तरफ से जो है दी गई है, और मैन मेड वो होती है जो कि इंसान अपने लिए जो है वो बना रहा है, पैदा कर रहा है. The following step will go a long way in reducing pressure of population और resources. तो जो मेन मेड रिसोर्सेज है उनको बढ़ाकर और ये जो हमारा मसला है इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है. अब नीचे कह रहा है कि हमने कुछ स्टेप बताए जो कि रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन जो प्रेशर आ रहा है रिसोर्सेज पे उनको. The productive resources be developed at a faster rate in respect of industry and profession, handicraft and cottage. अब क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जैसे कि मैन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, हम उनको बनाने का जो हमारे प्रोसेस को जो है फास्ट कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो काफ़ी मिकदार में रिसोर्सेज मिल सके. तो इससे क्या होगा, हमारे जो नेशनल और पॉपुलेशन के बीच बैलेंस है उसको हम जो है वो कायम कर सकते हैं. अब ये मैन मेड रिसोर्सेज या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन सी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकती है, ठीक है, प्रोफेशन हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हमारे लिए जो वो पेश आ सकती हैं, ठीक है. सेकंड में क्या कह रहा है, दैट टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी पॉपुलराइज and develop and modern technology be used so that the quantity and quality of output of agriculture, industry and other means of livelihood may be improved. अब क्या कह रहा है, हमें जो है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ट्रेन करना चाहिए लोगों को, ये चीज़ जो है वो पॉपुलराइज करनी चाहिए अपनी कंट्री में. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनको यूज़ करना चाहिए. अब एग्रीकल्चर में कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है. अगर ये हम जो वो सारी चीज़ें सही करेंगे तो हमारा जो
आउटपुट होगा किसी भी जो एग्रीकल्चर का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, तो ये आउटपुट हमारा जो है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही जो है वो बढ़ेंगी। अब क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, हमारी अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का है, तो ये इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी कीमत में आगे हम जो है वो दूसरी कंट्रियों में बेच सकते हैं, तो ये फ़ायदा हमें मिल सकता है। सेकेंड लास्ट में क्या कह रहा है कि स्पेशल अटेंशन इज नीडेड टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज पार्टिकुलरली इन माइनिंग एंड मिनरल ऑयल एक्सप्लोजन। अब क्या कह रहा है कि हमें जो है वो अटेंशन एक देनी चाहिए न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करने में, जैसे माइनिंग हो गया, मिनरल ऑयल एक्सप्लोजन हो गया। आपने सुना होगा थर वगैरह के इलाके में, ठीक है, काफ़ी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कोयले को जो है वो ज़मीनों से निकालना, गैस निकालना, पेट्रोल निकालना, तो ये सारी रिसोर्सेज को हम जो है डिस्कवर कर सकते हैं और हमारी अपनी कंट्री को स्टेबल कर सकते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, देयर इज अ कंसिडरेबल लैंड टू बी ब्राउड अंडर कल्टीवेशन। अब क्या कह रहा है, जो बंजर ज़मीनें हैं, ठीक है, उसको हम जो है वो कल्टीवेशन अंडर कल्टीवेशन जो है वो ला सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस लैंड रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। अब ऐसी ज़मीनें जो है इनको अगर हम स्पेशल अटेंशन दें, ठीक है, उनको जो है सही करने की कोशिश करें। मोreover the land affected by water logging and salinity should also be made fit for cultivation। अब क्या कह रहा है, इसके साथ जो ऐसी लैंड है जहाँ पर वाटर लॉगिंग मतलब पानी जो है वो रुक जाता है, ठीक है, या जो है नमकियात वाली ज़मीनें होती हैं, उनको भी जो है वो हमें अंडर कल्टीवेशन लाना चाहिए, उनको जो है ठीक करके, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर में जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी रिसोर्सेज जो है वो बढ़ेगी और हम जो है वो हमारी पॉपुलेशन में और हमारी जो है रिसोर्सेज में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉपुलेशन को हम जो है वो कंट्रोल करके इसमें बैलेंस नहीं कर सकते। हम रिसोर्सेज को भी अगर बढ़ाएं तो हमारी चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन उस पॉपुलेशन को हम जो है वो एक इफ़ेक्टिवली जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक था, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 6 जो के टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, 7th यूनिट का, और ये जो है वो ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।